Suppose you are standing on one side of this busy street and your friend is standing on the other side. But much further down the street, as you walk towards your friend, you know that you must cross the street at some point in your journey to meet your friend, right? Think of you and your friend as the two given points in the plane. Your path as you walk down the street is like the graph of the function. The street is simply an intermediate value that your path must cross if you want to meet up with your friend. At some point during a round trip, you will be exactly as high as where you started. It only works if you don't start at the highest and lowest point. At some point, you will be higher than where you started. At another point, you will be lower than where you started. So there must be a point in between where you exactly as high as where you started. That is, the path must be continuous, no disappearing and reappearing somewhere else. The same things happens with temperature, pressure and so on. This is the concept of intermediate value theorem. As far as we have discussed about the continuity and also the continuity in intervals, now we have to go for application of the continuity. In the application of the continuity, the theorem that is called intermediate value theorem, in which we discussed the solutions and the roots of the different variety of equations. Equations may be algebraic, polynomial or any transcendental equation. So let's start our video right after this short break. Intermediate value. Intermediate value. So let's start with पहले थ्योरम लिख लेते हैं और इस थ्योरम फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं डिटेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. A function f which is continuous, a function f of x which is continuous, which is continuous in a comma b क्लोज इंटरवल. ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस करना जानते हैं. possesses the following properties. First part, that we say if f of a and f of b possesses opposite signs, then there exists at least one solution of the equation fx equal to 0. ये इक्वेशन है. In the open interval a comma b. ठीक है. और सेकंड पार्ट क्या है अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको डिटेल. ठीक है, ये तो मेन क्वेश्चंस सब यहीं से यूजली होते हैं. और फिर इसी को जनरलाइज कर दें और तो इफ
if k is any real number, k is any real number between fa and fb, fa and f of b, then there exists at least one solution of the equation. ये इक्वेशन जो fx इक्वल टू 0 है, fx इक्वल टू k यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे fa और fb अपोजिट साइन है, ये k की वैल्यू 0 समझ करके चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे ये मतलब ऊपर वाला जो है इसका सबसेट है, सेकंड वाला जनरल रिजल्ट है, तो k के जगह पे 0 कर देंगे तो ऊपर वाली बात आ जाएगी। तो अपोजिट साइन हुआ यानी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी वो एक ऊपर है एक नीचे, और ये यहाँ पे k इज बिटवीन fa एंड fb, और fa पॉजिटिव है fa नेगेटिव है, तो k की वैल्यू 0 है, तो मतलब दोनों क्या है, अपोजिट साइन हो गया इसलिए, ठीक है। और k इज एनी रियल नंबर बिटवीन fa एंड fb, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, fx इक्वल टू 0, ये fx इक्वल टू k। Yes, got it. Okay, in the open interval, in the open interval a comma b open, right? यही टोटल इंटरमीडिएट वैल्यू थे। Once again, let's see. अब इसको एक्सप्लेन करता हूं। फंक्शन fx which is continuous in a comma b close interval possesses opposite sign over here, ठीक है। अगर ये अपोजिट साइन ले लेगा कौन, fa और fb possesses opposite signs, यानी fa अगर पॉजिटिव हो रहा है और fb पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और fa अगर नेगेटिव होगा तो fb पॉजिटिव होगा, ठीक है। possesses opposite sign, then there exists at least, यहाँ पे देखें at least one solution, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, at least one solution, ये at least one solution of the equation fx equal to 0 in the open interval a comma b। यहाँ पे क्लोज इंटरवल चाहिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल, और इसी ओपन इंटरवल में यहाँ पे क्या बात बता रहा है ये कि यहाँ देखें इफ एफ के इज एनी रियल नंबर, यहाँ पे k ले लिया गया है, इस जगह पे k की वैल्यू 0 है फर्स्ट वाले रिजल्ट में, और देन द एनी रियल नंबर k बी एनी रियल नंबर बिटवीन fa एंड fb, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू k इन द ओपन इंटरवल a comma b। सो लेट्स सी व्हाट वी आर एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, ठीक, तो देखते हैं क्या बात चल रही है। तो देखिए भाई यहाँ पे ये हो क्या रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक ग्राफ बना करके, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, पहले फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा करते हैं, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, और एक वाई एक्सिस, लेट दिस बी वाई एक्सिस, and here you know that is any function we can consider over here. Let's say this is x equal to a and this is x equal to b. So a comma b, अब शुरू से देखो, a function fx is continuous in a comma b। continuous का मतलब क्या हुआ, you have to draw the graph of fa and fb। तो यहाँ पे लिखा हुआ है if fa is possesses fa and fb possesses opposite sign, मीन्स अगर fa नेगेटिव है और fb को पॉजिटिव है, तो बिना पेंसिल उठाए अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा क्लोज इंटरवल से। तो a और b के बीच में फंक्शन को बिना पेंसिल उठाए ग्राफ को ड्रॉ करना है आपको यहाँ पे,
तो ये कहीं ना कहीं कोई एटलीस्ट वन वैल्यू शुड बी देयर, कम से कम एक वैल्यू जो रहेगा वो ओपन इंटरवल a कमा b के बीच में fx इक्वल टू 0 हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। दिस इज y एक्सिस एंड दिस व्हाट इज कॉल्ड x एक्सिस। और अब इसी तरह से आप ये देखें यहाँ पर x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, x एक्सिस, और फिर से ऐसे ही y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं दूसरी वाली बात को समझने के लिए, ठीक, दूसरी वाली बात को समझने के लिए y एक्सिस एंड दिस व्हाट इज कॉल्ड x एक्सिस। तो अभी देखो भाई यही fa बनाना है, फिर x इक्वल टू a और b के बीच में, a और b के बीच में कोई वैल्यू है k, सपोज लेट्स से दिस इज k कोई वैल्यू, ठीक, तो k कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, k वैल्यू के लिए देखो ये k कोई वैल्यू ले लेते हैं, k यहाँ पर, और अब देखें यहाँ पे, ठीक, तो k वैल्यूज के लिए अब अगर हम लोग फंक्शन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये फंक्शन ड्रॉ करें, तो ये बोल रहा है इफ k इज एनी रियल नंबर बिटवीन fa एंड fb, तो fa और fb के बीच में लेट्स से दिस इज fa है और यहाँ पर कहीं fb, ठीक, तो यहाँ पर ये भाई fa हो गया और ये fb हो गया, तो लेट्स से दिस इज ये हो गया अपना fb और ये हो गया अपना fa, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नोट कर लिया जाए, लेट्स से दिस इज fa, ये हो गया अपना fa और ये हो गया अपना f ऑफ b, ठीक, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, इफ k इज एनी रियल नंबर बिटवीन fa एंड fb, देखो fa और fb के बीच में ये k एक कोई रियल नंबर आ गया, ठीक है भाई, अब k रियल नंबर आ गया fa fb के बीच में, then at least one real solution, that at least one solution of the equation fx equal to k, fx equal to k का कोई एक सॉल्यूशन तो रहेगा ही जो कि यहाँ से ड्रॉ किया गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है तो क्या होगा, विदाउट रेजिंग द पेंसिल इफ यू आर ड्रॉइंग द ग्राफ देन इट मीन्स इट कट्स एटलीस्ट टू एट वन पॉइंट वेयर दिस व्हाट वी से हियर इट एग्जिस्ट हियर बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, तो a और b के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहाँ की ये कट कर रहा होगा, लाइक दिस, तो लेट्स से दिस इज c be any point, so fx इक्वल टू k एक इक्वेशन है जिसमें कि a b ओपन इंटरवल के अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। आर यू ऑलरेडी, इतनी बात समझ में आई? वंस अगेन देखिए ये वाली बात है, हाँ fx इक्वल टू k है, fx की वैल्यू k कब होगी, k है तो यहाँ पे k भी एनी रियल नंबर, k जबकि क्या है fa और fb के बीच में कोई एक रियल नंबर है, तो यानी कि यहाँ पे fa है और इस जगह पर fb है, तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमको फंक्शन कंटिन्यूअस बना करके, बीच में ड्रॉप नहीं करना है, तो जरूर ही k लाइन से होके गुजरना पड़ेगा ताकि यहाँ कट करे, और ये कट कहाँ करेगा, a से b के बीच में ही, और इस पूरे सिस्टम को उठा करके k वाले को नीचे ला करके ओरिजिन पर रख दे तो ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये k की वैल्यू 0 डाल दो, ये k की वैल्यू को अगर हम लोग 0 डाल देते हैं तो देखो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, k की वैल्यू को अगर 0 डाल दिए तो अपना ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये जनरल रिजल्ट हो गया, तो इसी का सेकंड पार्ट हो गया यू से, तो ज्यादातर केसेस में यही लिया जाता है, ये इजी है, पॉजिटिव और नेगेटिव इससे भी काम चल जाता है, लेकिन ये बहुत ही जनरल केस है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे क्वेश्चंस में ये हम लोग देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर मैं इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे और इसको एप्लीकेट करेंगे। तो बताइए हो गया, इसको कोई डाउट हो तो बोलिए, फिर से एक्सप्लेन करें। पूरे कॉन्टिन्यूटी का नटशेल में कंक्लूजन यही है, कॉन्टिन्यूटी इसी को अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम्स पर हम लोग कॉन्टिन्यूटी की चैप्टर पढ़ाई करते हैं। वो जो फर्स्ट बताया ना आपने केस, हाँ उसका एक बार बताइए ना सर वो। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि ये देखो ये fa की वैल्यू जो है यहाँ पर ये fa की वैल्यू यहाँ पर ये आपका fa हो गया और ये आपका fb हो गया। तो ये बोल रहा है कि fa और fb क्या हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है, यानी दोनों में अपोजिट साइन है, लाइक दिस। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, fa की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो fb की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये पढ़ो पहले स्टेटमेंट क्या लिखा है, इफ fa एंड fb possesses अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइन का मतलब एक पॉजिटिव होगा तो ये दूसरा नेगेटिव होगा,
ये समझ रहे हो? एफ ए एंड एफ बी आर पॉजिटिव। हाँ बोले, यस बोलिए। आप बोल रहा था। हाँ, ये एफ ए है और ये एफ बी है, ठीक। ये दोनों अपोजिट साइन होगा, यानी एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो ए से बी के बीच में जरूर कोई एक नंबर ऐसा रहा होगा, लेट्स से सी पर वो लिखा हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एटलीस्ट वन सोल्यूशन कौन है? वही वो सी है, वो जो है सी है, ये वाला, ये सी है, ठीक है। तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन इज देयर सो दैट एक्स इक्वल टू सी बी देयर बिटवीन ए एंड बी। एक से ज्यादा भी हो सकता है भाई, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा बना के दिखलाए मैं, बोले तो एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन में बना के दिखलाऊं। ये कर्व जो है यहाँ पर क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है कि एफ ए की वैल्यू यहाँ पर हो और मैं एक दूसरा कर्व बना करके दिखला रहा हूँ इस कलर से, ऑरेंज कलर से। देखो एक ऐसे भी कर्व हो सकता है, ऐसे लाइक दिस में। तो देखो यहाँ पर कितने जगह पे कट किया, 1 2 और 3, इस जगह पे कट किया। अब यहाँ भी ऐसे ही बना सकते हो, यहाँ भी एक से ज्यादा कर्व भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गया, ठीक है। तो ऐसे भी बन सकता है कर्व, क्लियर है। तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पे का मतलब कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, कि एफ ए यहाँ पे एफ ए निगेटिव हो, एफ बी पॉजिटिव हो, या एफ ए पॉजिटिव हो एफ बी निगेटिव हो। कहने का मतलब कि एफ ए इंटू एफ बी, पहले वाले के लिए जो आपने पूछा, एफ ए इंटू एफ बी इज निगेटिव, एफ ए इंटू एफ बी क्या हो, निगेटिव हो इस केस में, इस केस में, ठीक है भाई। और यहाँ पर इसका इसका मतलब ये क्या हुआ, हाँ, एफ ए और एफ बी के बीच में ये के लाई कर रहा है, एफ ए से एफ बी बड़ा है, तो एफ ए और के, और मीन्स के इज एनी रियल नंबर लाइज, क्या है, के भी एनी रियल नंबर बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। ये एफ बी भी छोटा बड़ा हो सकता है, लाइक दिस वे, ऐसे भी हो सकता है, के इज ग्रेटर देन एफ ए एंड लेस देन एफ बी, और दोनों हो सकता है, के इज ग्रेटर देन एफ बी एंड लेस देन एफ ए, मतलब जो भी हो इनके बीच में होगा। तो एफ ए एंड एफ बी कुछ भी हो सकता है, ये एफ बी लिखा है तो ये यहाँ पे एफ ए लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लाइक दिस वे। तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो कट करेगा ही, ठीक है भाई, एफ ए इंटू एफ बी। तो यहाँ पे इन दोनों का मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। तो दिस इज, इसको बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक जगह कर चुका है आप लोगों ने, मतलब एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल, उसमें आप कर चुके हैं। उसको मैं बाद में अभी दिखलाऊंगा, एक क्वेश्चन लूंगा तब उससे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं इसको एक क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करके दिखलाता हूँ कैसे करना है। तो ये समझ में आया, तो नेक्स्ट ले। ओके, तो लेट्स गो थ्रू वन क्वेश्चन, इसी को एप्लीकेट करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। पहले ये इंटरमीडिएट वाले थ्योरम है, यही मेन पढ़ाई थी आज। ओके, सो लेट्स टेक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, given that A is greater than B is greater than C is greater than D, right? Then prove that. The equation x minus A into x minus C plus 2 times of x minus B into x minus D equal to 0 will have real and distinct roots. Real and distinct roots. Real and distinct roots. Okay. तो चलिए ट्राई करिए, आप लोग करेंगे कि मैं करके दिख लाऊं। ये एक इक्वेशन है, इसके कितने मैक्सिमम रूट्स होंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। आप बहुत ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत पहले करवा चुका हूं क्लास में, चेक करें, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट आप दिखला सकते हैं पॉजिटिव, तो रियल और डिस्टिंक्ट आ जाएगा, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव दिखलाना नॉट इजी टास्क, वो बहुत ही लेंथी होगा। ये ए बी सी डी सब अननोन क्वांटिटी है, सब अलग अलग नंबर है, हालांकि क्वाड्रेटिक है होने को हो जाएगा, लेकिन बहुत ही लेंथी होगा, वो फैक्टराइजेशन एंड साइक्लिक एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करें, फर्स्ट वाला पार्ट, if fa and fb possesses opposite sign, then there exists at least one solution of the equation fx equal to 0 in the interval a, b। तो आपको दो सॉल्यूशंस, दो रूट्स दिखलाने हैं, तो इसमें सॉल्यूशंस को एग्जिस्ट कराना है। कैसे करेंगे मैं इसको करके दिखलाता हूं। लेट्स सॉल्व। तो ऐसा करेंगे, पहले ये जो इक्वेशन है, ये कौन सा, ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है क्या, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, fx एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स से fx इक्वल टू x माइनस ए, राइट, और x माइनस सी, इस पूरे रिजल्ट को fx एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन आएगा उसको आप इधर वाले को fx ले लेंगे, ठीक है, वो एक्सप्रेशन जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी। इतनी बात समझ में? ये अब देखो भाई, यहां पर ये जैसे कि एक वो बना लेते हैं वो दिखलाने के लिए, ये सपोज कोई एक एक्स लाइन है और लाइक दिस, यहाँ पे सपोज कोई ए है, क्योंकि ये लिखा है ना a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, तो a हम लोग को दूर बनाना पड़ेगा, तो a तो सबसे छोटा क्या होगा, d होगा, तो d, फिर क्या आएगा इसका नंबर c, फिर क्या आएगा b आएगा, और लास्ट में जो है a आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस ये गिवन है a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन d, तो a b c d हम लोगों ने बना लिया। तो जरा a पर सिचुएशन देखें, इस क्वाड्रेटिक का लेवल क्या है, इस फंक्शन का fa पर वैल्यू क्या आ रही है। तो चलो बताओ भाई, यहाँ पे एवेलुएट करें, f ऑफ a पर वैल्यू निकालो, f ऑफ a पर वैल्यू निकालिए, पहले f ऑफ a पर वैल्यू बताइए क्या होगा। यहाँ पे a रख दो, इस फंक्शन में जरा a पर देखो सिग्नेचर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है निगेटिव हो रहा है, तो बताओ f ऑफ a, इसमें a रख दो ना, सभी x के जगह पर a रख दो, जहां जहां x देखो वहां वहां a रख देने का, पॉजिटिव। हाँ, तो ये क्या होगा, a माइनस a क्या होगा, ये 0, और ये क्या होगा ट्वाइस ऑफ, हाँ, तो मैं लिख के दिखलाऊं कि हाँ चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आपके पास नोट्स में रहेगा, a माइनस a माइनस सी, और प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस, जहाँ जहाँ x देखो वहाँ a रखना है, a माइनस बी, और यहाँ पे a माइनस डी, राइट। अब क्या करना है, इसको जरा सॉल्व कर दो, देखो ये 0 हो गया। अब व्हाट अबाउट दिस वन, तो ये वाली वैल्यू अब अगर आप सॉल्व करोगे तो बस बचेगा क्या, यही सेकंड वाला पार्ट बच जाएगा, 2a माइनस बी और a माइनस डी, तो ये a माइनस डी हो गया। अब आप देखो a माइनस बी और a माइनस डी, यहाँ से देखो a और b केवल इतने पार्ट को देखो, a इज ग्रेटर देन b है, तो a माइनस बी क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, a माइनस बी क्या होगा, ये जो है वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, और a माइनस डी, a इज ग्रेटर देन d, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, तो फाइनली द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। समझ में आया भाई, ये चीज समझ में आया। देखो a माइनस बी भी पॉजिटिव हो गया ना, a माइनस बी इसको देखो पॉजिटिव होगा, और a माइनस डी इसको देखो, a इज ग्रेटर देन d, यहाँ पे लिखो a इज ग्रेटर देन d, तो a माइनस डी भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है भाई, तो ये भी चीज पॉजिटिव हो गया, और ये दोनों पॉजिटिव हो गया, तो दोनों पॉजिटिव से ये भी रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। समझ में आया? तो फाइनली fa की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो मार्क दिस पॉइंट, fa की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, a पर वैल्यू फंक्शन पॉजिटिव हो गया, तो एक कोई कहीं भी होगा ऊपर, मतलब x एक्सिस से ऊपर होगा, थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम कर लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, तो x एक्सिस से ऊपर ये पॉइंट कुछ हो गया, कहीं भी पॉइंट आ गया a, fa, ये वाला जो एक्सप्रेशन, ठीक, तो बाद में देखेंगे तो कोई एक सोल्यूशन होगा। चलो तो अभी इसको क्या करते हैं, fb में निकाल लेते हैं सभी लोग, fb निकाल लीजिए आप लोग, ऐसी बात है तो f ऑफ b क्या आएगा,
नेगेटिव आएगा सर। हाँ, एफ ऑफ बी निकाल लो, एफ सी निकाल लो, एफ डी निकाल लो, सभी ऐसे ही निकाल डालो, ठीक है। तो अभी जो है ये एफ बी निकालेंगे। एफ बी अगर निकालते हैं, एफ बी इज इक्वल टू, देखो ये बी इज, ये सेकेंड वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, बी माइनस ए और बी माइनस सी, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अभी लिख के नहीं दे रहा हूँ, प्लस ट्वाइस ऑफ ये जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए इज, यहाँ से देखो नेगेटिव हो गया, और ये बी माइनस सी ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव फाइनली क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया, तो एफ बी वाली बात नेगेटिव हो गई, सही कह रहे हैं भाई, एफ बी नेगेटिव हो गया, तो एफ बी पर ये नेगेटिव कर दो, बी कमा एफ बी, बी कमा एफ बी, ये नेगेटिव हो गया, एक्स एक्सेस से नीचे आएगा, ठीक है। एफ ए देखो पॉजिटिव है और एफ बी नेगेटिव है, ठीक है। अभी चलो एफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, एफ सी की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, तो एफ सी निकालेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा, एफ सी की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, लेट्स सी, सी माइनस सी, ये वाला जीरो हो गया, अब ये वाला जीरो हो गया भाई, ये ड्यू टू दिस वन एक्स माइनस सी, अब प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी माइनस बी, और फिर क्या लिखेंगे, सी माइनस डी, राइट। तो व्हाट अबाउट दिस वन, यू से सी माइनस बी, यहाँ से देख लो, सी माइनस बी इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, कौन सा, सी माइनस बी, और सी माइनस डी क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, तो वंस अगेन यू विल फाइंड दिस इज नेगेटिव, करेक्ट, तो एफ सी भी आपका नेगेटिव आ गया। चलो एफ डी निकाल लो भाई तब तक, पॉजिटिव आएगा सर। अच्छा, तो सी कमा एफ सी ये आपका नेगेटिव आ गया, दिख रहा है भाई, सी कमा एफ सी भी नेगेटिव, कुछ नहीं कि दोनों ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, आगे पीछे कहीं भी, मतलब एक्स एक्सेस से नीचे रहेगा, हम रफली मार्क कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग एफ डी पे लिए वर्क करना शुरू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट एफ डी पर वर्क कर लीजिए भाई, एफ ऑफ डी निकाला ऐसे ही, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जीरो होगा, देखो ड्यू टू दिस एक्स माइनस डी, ये वाला पार्ट जीरो होगा, ये वाला आ जाएगा, तो डी माइनस ए, और क्या आ गया, ए माइनस डी माइनस सी ना, डी माइनस सी, और डी माइनस ए, सो वी से, या डी माइनस ए, यहाँ से देखो डी माइनस ए नेगेटिव आ गया, यहाँ से दिख रहा है, और डी माइनस सी यहाँ से दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो कि मैंने इससे मैं निकाल रहा हूँ, ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव क्या हुआ, ये फाइनली पॉजिटिव आ गया, तो फाइनली व्हाट वी गेट हियर, दिस इज पॉजिटिव, तो ये एफ डी पर वैल्यू क्या हो रही है, डी कमा एफ डी, दैट इज वंस अगेन लेट इट सो हियर, डी एफ डी वंस अगेन दैट इज पॉजिटिव। ये बात सबको समझ में आई? हाँ सर। तो अब देखो ए एफ ए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, बी एफ, ठीक है, ये जरा इसको मार्क कर लेते हैं, ए एफ ए देखो यहाँ पे आ रहा है, बी एफ बी देखो यहाँ पे आ रहा है, सी एफ सी देखो यहाँ पे आ रहा है, और डी एफ डी देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप करना क्या है कि एफ एक्स को जरा ध्यान से देखो, ये एफ एक्स क्या है आपका, ये वाला पूरा एफ एक्स, ये एफ एक्स अगर आप देख सकते हो, तो ये एफ एक्स एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, और यू से 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है, तो 2 डिग्री का अलजेब्रिक पॉलिनोमियल क्या बताया गया है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इससे पहले वाला थ्योरम में लास्ट वाला देखो, आप कल के लेक्चर में लास्ट लाइन में लिखा था, ऑल पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, तो ये थ्रू आउट फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन सा, एफ एक्स। तो अभी क्या बताया गया है, इससे पहले क्या पढ़ा है, फिर से जरा चेक करो, फर्स्ट वाला पार्ट, if a function fx is continuous in a comma b close interval, if fa and fb possesses opposite sign, then there exists at least one solution of the equation fx equal to 0। तो ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है भाई, ये फंक्शन यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये कंटिन्यूअस है। तो a और b के बीच में a पर वैल्यू पॉजिटिव है, b पर वैल्यू नेगेटिव है, तो a पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो इनके बीच में कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही भाई। अब आप कह सकते हो कि एक से ज्यादा भी तो हो सकता है, तो अगर हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, कंटिन्यूअस ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि एक्स एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है, दिखा,
और फिर ये इनको ज्वाइन करते हुए ये यहाँ से C और D के बीच में यहाँ से ऐसे ग्राफ जाएगा, लाइक दिस। मैं थोड़ा स्मूथ ग्राफ ड्रॉ कर दूं। फिलहाल इनके बीच में इस तरह का ग्राफ आएगा। ये एक सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। अब इनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि दोनों अपने सेम डायरेक्शन में, सेम पॉजिटिव, और दोनों ही निगेटिव है, दोनों ही जो है अपने ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों ही निगेटिव है। ठीक है, तो बस इनको ज्वाइन कर देना है यहाँ पे। तो ये देखो इसकी शक्ल कैसी है, क्वाड्रेटिक ग्राफ। ये अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो 2 डिग्री में ज्यादा से ज्यादा कितना रूट्स हो सकता है, 2। तो एक तो रूट ये हो गया अपना, कौन सा, x1, और दूसरा रूट ये हो गया x2। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक रूट a से b के बीच में होगा और दूसरा रूट d और c के बीच में होगा। एक d c के बीच में होगा, एक b a के बीच में होगा। तो दो रूट्स, दो रियल रूट्स तो होना तय है, क्योंकि इससे पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में लिखा था एटलीस्ट वन रूट। एटलीस्ट वन रूट का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक रूट होगा। तो यहाँ पे देखो एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक यहाँ भी होना है, और टोटल इसकी डिग्री 2 है। 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसलिए यहाँ पे 2 रूट्स होना तय है। तो 2 रूट्स है, तो एग्जैक्टली 2 रूट्स यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करना था, दोनों ही रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। दोनों ही रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग। तो ये देखो अलग अलग आ गया, डिस्टिंक्ट भी हो गया, रियल भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करके ये दिखला दिए कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। आर यू ऑल गेटिंग? अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात थी भाई, ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था, डिस्क्रिमिनेंट में हम कैसे तैसे कर ही लेते, तो आईवी थ्योरम पढ़ने की क्या जरूरत थी। तो आईवी थ्योरम में आपको ये परमिशन देता है, परमिट करता है और परमिट देता है कि किसी भी वैरायटी के इक्वेशन में आप ये कर सकते हो। ये आईवी थ्योरम नॉट इजी, ये जो है यहाँ पे देखें, मतलब आप इसको हल्के में नहीं लें। ये जनरल फंक्शन नहीं है कि एक अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए हम मैं करके दिखला दिया आईवी थ्योरम को आप लेंगे। यहाँ पे लिखा है अ फंक्शन एफ एक्स, यानी कोई भी फंक्शन हो, यानी कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी हो और किसी भी तरह का, तो ऐसे फंक्शन जिसको कि हम लोग जनरल वे में इसका रूट सोल्यूशन नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, उन फंक्शंस के लिए भी हम लोग आईवी थ्योरम के हेल्प से रूट्स के बारे में एप्लीकेट कर सकते हैं और रूट्स का जो है यहाँ पे इंटरपोलेट कर सकते हैं कि किस इंटरवल के अंदर रूट्स आएगा। इसका प्रेडिक्शन हम लोग बता सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि रूट कैसा होगा। ठीक है, तो लेट्स से एक इस पे और एक क्वेश्चन मैं लूंगा, इसको मैं हटाऊं, एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। fx equal to, that is x e power x minus 2. fx equal to this, then क्या है, then show that। अभी कैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। then show that fx equal to 0 as exactly one root in the interval (0, 1). 0, 1, ये देखा। तो ये क्वेश्चन को अब हम लोग को करना है स्टार्ट। इसको आप लोग ट्राई करेंगे, चलिए करके देखिए क्या हो रहा है। पहले f0 और f1 इस इंटरवल के बीच में रूट लाई करना है। तो देखो ये ओपन इंटरवल के बीच में लाई कराना है, तो यहाँ पर हम लोगों को ओपन इंटरवल के बीच में अगर ये रूट लाई कर रहा है तो ये इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखिए भाई, ये 0 से 1 क्लोज इंटरवल के बीच में इस fx का बिहेवियर कैसा है, fx का बिहेवियर कैसा है बोलिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल, fx that what we call x e power x minus 2,
जरा यहाँ पे f0 की वैल्यू बताइए क्या आएगा, f0 की वैल्यू और f1 की वैल्यू बोलिए भाई। f0 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 0 रख दिया तो क्या आएगा, -2, दैट इज नेगेटिव, दैट इज हियर इट इज नेगेटिव आ गया, ठीक है भाई। और अब f1 की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दो, तो 1 इंटू e पावर 1 -2, हाँ e की वैल्यू 2.71828 होती है, तो दैट इज पॉजिटिव, e -2 इज पॉजिटिव, यानी कि, और ये कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन और कांस्टेंट, अलजेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल। फिर वही थ्योरम जाकर के देखें, ऑल अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, तो वही वाला थ्योरम, पहला वाला थ्योरम क्या बताया कि यहाँ पर फिर से देखें, एफ ए एंड एफ बी पोसेसेस द अपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द ओपन इंटरवल a, b, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम एक सॉल्यूशन तो यहाँ पर होना ही होना तय है, ठीक है, इनका, किसका, इस एफ एक्स इक्वल टू 0 का। तो लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे ये मैं लिख लेता हूँ, एक्स एक्सिस बना लेते हैं, let's say this is x-axis and this what we call a y-axis, this y-axis and this what we call x-axis। तो f0 पर वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, f0 पर वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो 0 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और 1 पर वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव आ रही है, 1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, f0 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, f1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये क्लियर, ठीक है। तो चलो भाई, ये चीज़ हो गया आपका f1, ये हो गया आपका f1 और ये हो गया आपका f0, ठीक। तो यहाँ पे फिलहाल ये जो है हो गया आपका f1 और ये हो गया आपका f0, ये 1 हो गया, ठीक। तो 1 कमा f1 आ गया, 1 पर वैल्यू 1 कमा f1, ठीक है। तो जो भी हो, अब एनी हो, तो f0 और f1 के बीच में अब यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देखो f0 नेगेटिव हो रहा है, f1 पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें अभी हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, x e और x -1। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या प्रूफ करना था, एग्जैक्टली वन रूट। तो यहाँ पर तो ये बस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ये पता चला, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन, देन देयर एग्जिस्ट at least one solution of fx equal to 0 in x belongs to 0,1, क्लोज ओपन इंटरवल 0,1 में। तो एक सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया, ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ है एटलीस्ट, ये जो थ्योरम था वो एटलीस्ट के था, यहाँ पर जो रिजल्ट हम लोग को दिखलाना है वो एग्जैक्टली वन रूट लिख रहा है, और वन रूट लिख रहा है, सॉल्यूशन नहीं, वन रूट लिख रहा है। तो व्हाट इट मींस, इसको कैसे हम लोग दिखलाएंगे अब, यानी कि ये एक बार से ज्यादा नहीं, ये ऐसे नहीं कट करना है, ये ऐसे नहीं कट करना है, इसको कैसे कट कराना है हम लोगों को, इसको जो है लाइक दिस वे, या तो ये ऐसे ही जा रहा है, ठीक, या ऐसे जा रहा है, एक ही बार कट कर रहा है। तो एक बार कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम लोगों को देखना है। तो चलो, ये f0 वैल्यू 2 आएगी, -2 आएगी, तो यहाँ पे -2 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चाहे तो -2 आ गया, 0, -2 ये ग्राफ। तो 0, -2 से जा करके ये 1 e -2 वैल्यू आएगी, तो 1 × e -2 पर वैल्यू हम लोग को टच कराएंगे, तो ये इस तरह का ग्राफ होगा, यानी एक ही जगह पर कट रहा है। ये कैसे पता चलेगा भाई, तो ये ऐसे पता चलेगा, ये अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग तो पढ़ ही लिए हैं, उस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मोनोटोनिसिटी से पता चलेगा भाई। ये क्या करेंगे, fx इक्वल टू x e पावर x -2, तो इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो f' इक्वल टू क्या होगा, x इंटू e पावर x प्लस e पावर x का डिफरेंशियल 1, तो दिस शोज दैट e पावर x इंटू x प्लस 1। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए क्या होगा, ये देखो, ये फंक्शन 0 से 1 के बीच में x + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, x + 1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा भाई,
तो x plus 1 is always positive for this interval. This is positive and this is also, of course it is positive. So finally the result will be, we say here, f dash x is positive. So f dash x क्या हुआ, greater than 0 हो गया, ये positive आ गया. So this shows that here fx is what it shows. F dash x positive होगा तो what we conclude over here that fx is कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. fx क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. इन मोनोटोनिसिटी चैप्टर वी विल डिस्कस डिटेल. मोनोटोनिसिटी में हम लोग इसको डिटेल डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल आप लोग मोनोटोनिसिटी अगर पढ़े होंगे तो ये आइडिया लग गया होगा कि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे दो बार वो नहीं घूमेगा, एक ही बार घूमेगा, इसलिए एग्जैक्टली वन रूट होगा. देयरफॉर दिस शोज ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका, एग्जैक्टली वन. सुना है? चलिए एक और इस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ. तो चलिए नोट कर लिए, फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ इस तरह. एक आप लोग करेंगे ऐसे ही, मैं दो क्वेश्चन. अच्छा, ये अभी दूसरे वाले उस पर नहीं ना हुआ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन उस पर देता हूँ मैं, दूसरे वाले रिजल्ट पर. एफ एक्स इक्वल टू के कैसे हो रहा है, इस वाले पे रिजल्ट पे भी देना है. ओके, हटाए इसको. एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन minus cos pi x for x belongs to 1 to 2, 1 to 2, close interval, takes on the value, takes on the value 1 by 2. Show that, यहाँ इसको लिख लेंगे, show that okay, so show that fx equal to x minus show that fx equal to x minus 1 minus cos pi x, x belongs to 1 comma 2, takes on the value 1 by 2. तो चलिए इसको ट्राई करिए. बोले भाई क्या आएगा, बोल रहे हैं. अभी वो 1 और 2 वैल्यू डाल के देखना है x की जगह पे. पहले 1 और 2 डाल के, करेक्ट. अब
अच्छा देखो ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है भाई, कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस होता है, इसको ध्यान से देखिए, ये x माइनस 1 ये एल्जेब्रिक हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया और ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस इसलिए कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, x बिलोंग्स टू 1,2 पर कंटिन्यूअस रही। ये लिख लेंगे, दिस इज कंटिन्यूअस इन एवरीवेयर इन दिस इंटरवल, fx is continuous everywhere in the interval 1,2 इंटरवल में fx थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो अब वो निकाल लो, f1 निकाल लो और f(2) निकाल लो, ठीक, f1 निकाल लो और f(2) निकाल लो, तो f1 की वैल्यू क्या आई, 1 रख लो, 0, cos पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या आया, f(1) का 1, f(2) रख दो, 2 - 1 1 0, तो एक वैल्यू क्या आ रही है, x - 1 माइनस cos पाई x, ये एक f1 की वैल्यू 1 आ गई, देखो x = 1 रख दिया, आ रही है आवाज, x की वैल्यू 1 रखा, ये 0 आ रही है, cos पाई की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस +1 हुआ, 1 हो गया, 2 रखा तो 2 - 1 1 आ गया, और माइनस cos पाई x, cos 2 पाई 0, cos 0 डिग्री 1, तो 1 आया ना, ये 1 - 1 0, 2 - 1 1, 1 - 1 0, 0 आया, इतनी बात समझ में आई। तो देखो भाई यहाँ पर, हाँ ओके, तो मतलब ये निगेटिव आता था तो आपको साफ दिखता रहता, तो व्हाट इट मीन दैट इज ये 1/2 ये जो लिखा हुआ है टेक्स ऑन द वैल्यू fx = दिस, क्या लिखा हुआ है, सो दैट द फंक्शन दिस टेक्स ऑन द वैल्यू 1/2, तो क्या कोई वैल्यू है जहां पे ये एग्जिस्ट कर रही है 1/2, तो 1/2 यू नो दैट इज लाइज बिटवीन 0 and 1, 1/2 lies between 0 and 1, so by IVT we can say f of 1/2 डाल दो, f of 1/2 यहाँ पे रखो, क्या आएगा, f of 1/2 यहाँ निकाले आप लोग, क्या आएगा, ये f of 1/2 की वैल्यू निकाल लें, माइनस, नहीं ये बोल रहा है कि मीन्स लिखा क्या ये क्लियर नहीं है, सो दैट द फंक्शन fx दिस x = 1 to 2 टेक्स ऑन द वैल्यू 1/2, ये खुद 1/2 वैल्यू ले रहा है, ये खुद जो है ये मतलब ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 रखा तो -1/2 आ रहा है, हाँ इसको हाफ से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको हाफ से इक्वेट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये मतलब 1 से 2 के बीच में आ रहा है कुछ, कहने का मतलब ये ये एक वैल्यू 0 हो रहा है, ये एक वैल्यू यहाँ पे 0 हो रहा है और a एक 1 हो रहा है, ठीक है, तो वैल्यू 1 पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और 2 पर वैल्यू 0 आ रही है, तो ये 1 पर वैल्यू 2 आ रही है, 1 पर वैल्यू जो है क्या आ रही है, 1 पर वैल्यू 1 आ रही है, और 2 पर वैल्यू 0,
2 पर वैल्यू 0, करेक्ट। तो अब ये देख रहा है कि 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू है जिसपे कि हाफ भी हो सकता है क्या? हाफ देखो कहीं होगा क्या 1 से 2 के बीच में? तो चूंकि 1/2 0 से 1 के बीच में आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है ना 1/2, तो इसको 1/2 से इक्वेट करो, x माइनस 1 माइनस कॉस पाई x। क्या 1/2 आ सकता है? ये कभी 1/2 आ सकता है? ये बोल रहा है। अगर मतलब वैसा इक्वेट किए तो x की वैल्यू 3/4 आ रही है। क्या x की वैल्यू क्या आ रही है? मतलब 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हम लोग रखे हैं 1 से 2 के बीच में, तो ये वैल्यू ये 1/2 आ सकती है क्या? आ सकती है। यानी कि एटलीस्ट वन वैल्यू शुड बी देयर, मींस एटलीस्ट one value in interval in the interval that is 1,2 क्लोज इंटरवल के बीच में कोई एक वैल्यू जरूर होगा जो कि क्या होगा, ये इसके अंदर लाई करेगा। इट लाइज बिटवीन, इट टेक्स वैल्यू 1/2, एटलीस्ट वन वैल्यू इन दिस इंटरवल, so that f of c equal to 1/2। लेट्स से दिस इज c पर वैल्यू क्या हो रही है? 1/2 आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जो है आने में फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस है भाई। तो कंटिन्यूअस है तो कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ही, x की वैल्यू c जो इसके अंदर आएगी। मतलब मेन ये वाली चीज है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आया तो फिर एक्सप्लेन करें। 1/2 को छोड़ के भी और हो गया ना वैल्यू? नहीं, ये बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन समझें। शो दैट f इक्वल टू दिस x बिलोंग्स टू 1,2 में कोई ऐसा वैल्यू होगा जहां इट टेक्स ऑन द वैल्यू 1/2। तो मैं ये वाला अप्लाई किया हूं आईवी थ्योरम यहाँ पे, ये सेकंड वाला, ये देखो भाई सेकंड वाला, ये जो k है, k लाइज बिटवीन fa एंड fb। तो a से b के बीच में जरूर एक वैल्यू ऐसा c यहां पर होगा, ये जो c है, जिस पर कि ये k लाई करेगा। कौन? fx k की वैल्यू पकड़ेगा। If k is any real number between a and b, then there exists at least one solution of the equation fx equal to k in the open interval a, b। a, b ओपन इंटरवल के अंदर कोई एक वैल्यू होगी जो कि fx वैल्यू k को पकड़ाएगा अगर k fa और fb के बीच में लाई कर रहा है। तो यही चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं जनरल आईवी थ्योरम का रिजल्ट बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव वाला बात नहीं कर रहा हूँ। f1 की वैल्यू 1 आई है और f2 की वैल्यू 0 आई है, तो 1 से 2 पे आने के लिए ये दिस इज x एक्सिस, दिस व्हाट यू कॉल y एक्सिस। तो fx की वैल्यू चूंकि 1/2, fx वैल्यू 1/2 कब पकड़ेगा? तो क्या 1/2 x की किसी वैल्यू के लिए पकड़ेगा बीच में? ये देखना है। तो भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। सो दैट व्हाट वी से हियर, कॉन्टिन्यूअस अगर ये फंक्शन है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ये फंक्शन जरूर कोई x की एक ऐसी वैल्यू होगी 1 से 2 के बीच में जहां fx वैल्यू 1/2 पकड़ लेगा, तो fc इज इक्वल टू 1/2 होगा। ये सेकंड वाला पार्ट है आईवी तरह। समझ में आया? क्लियर? हाँ सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको, ये बात को क्लियर करने के लिए, इसी बात को समझने के लिए, ठीक है? तो एक मिनट वो पीछे की स्लाइड लो नहीं कि ये आपका ये वाली थ्योरम की बात कर रहे हैं हम, ये वाले थ्योरम की बात कर रहे हैं, सेकंड वाला, ये सेकंड वाले थ्योरम की बात कर रहे हैं। If k is any real number between fa and fb, ठीक है? तो k fa और fb के बीच में हो रहा है, ये वाला नहीं कर रहे हैं। ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया इसका, ये बहुत ही जनरल केस हुआ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मिनट सर। कोई नहीं, मैं इसको भेज दूंगा पीडीएफ में, नोट कर लेंगे आप, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जल्दी से हो जाएगा, ठीक है? चलिए वहाँ छोड़ दिए क्वेश्चन, मैं ये भेज दूंगा ना, तुरंत मिल जाएगा आपको। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। शो दैट, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा, ठीक है? तो अभी पहले ये लिख लें क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन
फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये उसी तरह का फंक्शन होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। एक्स टेक्स द वैल्यू takes the value a plus b upon 2 for some values of x belongs to a comma b close interval। ठीक है, ये तो देखो ये फंक्शन भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया थ्रू आउट। चलिए अभी आप लोग करें इसको फटाफट। कंटिन्यूअस है, अब एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालें। तो ये उसी तरह का हो गया जैसे पहला वाला क्वेश्चन हो गया। ये देखो ये बोल रहा है कि 1 से 1 2 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कि 1/2 ले लेगा। तो आपको ये बाउंड्रीज पर वैल्यू निकाल लेंगे और दिखला देंगे कि जो है 1/2 इस बाउंड्री के बीच में आता है। तो यहाँ पे भी यही काम करना है, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग एफ ए और एफ बी पर वैल्यू निकाल लें और जो वैल्यू आएगी एफ ए और एफ बी की तो वो वैल्यू दिखला दें कि ये वाला a + b/2 उसके बीच में ही लाई करेगा। तो बहुत ही ईजी है भाई, बहुत ईजी है। तो पहले क्या लिखेंगे? एफ ए की वैल्यू a है और एफ बी की वैल्यू b है। हाँ बढ़िया। एफ ए की वैल्यू क्या आ रही है पहले ये लिख लेंगे। ये तो पहले लिख ही लेंगे सब लोग, ये जरूर लिख लिया करेंगे, तभी आप अप्लाई करने के लिए कैपेबल है। परमिट तभी आपको मिलेगी। एफ इज कंटिन्यूअस। अब ये आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ये कंटिन्यूअस है। तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने भी निकाल दिया। तो कंटिन्यूअस इन a, b। क्यों कंटिन्यूअस है भाई? बिकॉज दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन। तो नो नीड टू टेस्ट कंटिन्यूटी। अगर कुछ ऐसी बात है, प्रॉब्लम है, तो वहां पे कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे ये a से b इंटरवल के बीच में, जैसे इंटरवल में कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए इससे पहले डिस्कस किया जा चुका है। एनीहाउ, तो ये फंक्शन अलजेब्रिक है तो इसमें कंटिन्यूअस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड वी नो दैट एफ ए की वैल्यू आपने क्या बताया? एफ ए रख दीजिए इसमें, तो ये वाला 0 हो गया, तो ये वैल्यू एफ ए आ गई भाई। और ये एफ बी रख दो। ठीक है, ये एफ ए की वैल्यू क्या हो गई? एफ ए की वैल्यू ए आ गई। अच्छा, और एफ बी की वैल्यू, अच्छा इससे ये 0 हो गया तो एफ बी की वैल्यू बी आ गई। तो बहुत अच्छा है, एफ ए की वैल्यू ए आ गई, एफ बी की वैल्यू बी आ गई। तो भाई अब यू ऑल नो वेल, एज यू नो, दैट इज अरिथमेटिक मीन। ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? एज वी नो एज एवरेज या अरिथमेटिक मीन आप लिख सकते हैं। एवरेज या अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी आर a + b/2। तो एवरेज बट नेचुरल है, a और b के बीच में लाई करती है। तो a + b/2 बिलोंग्स टू a, b क्लोज इंटरवल, इसके बीच में ही लाई करेगा। ये तो क्लियर है। ठीक है भाई। सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सेफली वी कैन से देयर एग्जिस्ट बाय इंटरमीडिएट आईवी थ्योरम, ऐसे लिख देंगे। बाय आईवी थ्योरम वी कैन से देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट। ओहो, then there exists at least one C belongs to A, one solution C belongs to A, B open interval such that क्या FC equal to A + b/2। ये वाली वैल्यू पकड़ लेगा, a + b/2। तो ये लिखा है, शो दैट द फंक्शन दिस टेक्स द वैल्यू a + b/2। fx वैल्यू a + b/2 होगी भाई। इस इंटरवल के अंदर कोई एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है,
जिसमें ये इंटरवल के अंदर ये वैल्यू लेगा। समझ में? होप सो यू आर गेटिंग। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ, आप बोले तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे फटाफट। यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, यूजिंग, अब यहाँ पे आईवी थ्योरम लिखेंगे, आईवी थ्योरम, ठीक। यूजिंग आईवी थ्योरम show that the equation 2x cubed plus x square minus x plus 1 equal to 5, ठीक। as a solution interval 1, 2 close interval